Hello students, welcome to all in another video of English classes. Students, today I have brought a very important poetry for class 7 and this poetry is taken from your English book. So students, be ready to study a very interesting poetry. This is written by Rudyard Kipling. So students, listen carefully. Students, our fourth chapter is poetry and the name of poetry is If. Students, If is a fourth number poetry and this is taken from your English book for class 7th. This poetry is written by Rudyard Kipling. Students, the meaning of poetry is agar. If means agar. In this poetry, we have to study about the preaching words, about the morals, how a father taught his son and the son obeys his father. Okay students, so first of all we will know about the poet. Rudyard Kipling is an English writer. He is an English author and he was born in 1865 and he died in 1936. Students, the main thing about the Rudyard Kipling, he was born in India. Rudyard Kipling was born in India, but he is called an English writer. Okay, students, Rudyard Kipling wrote many books in his life, just like Kim, the Jungle Books are very famous book. So learn the name of the books. Students, Rudyard Kipling also got the Nobel Prize for Literature in 1907. So Rudyard Kipling is a very famous writer of England. So we have to study the famous poetry If. Students, the warm-up of this poetry is, if you have problems about your lives, about your study, then how can you solve your problems? You have to think about this and write your feelings in rough copy. और आपकी कोई समस्या हो स्टडी से रिलेटेड, या सपोज दैट यू हैव नॉट डन एनीथिंग, कुछ आपने किया नहीं है, बट हाउ कैन यू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, राइट योर फीलिंग्स इन रफ कॉपी. द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर इज ऑलरेडी सेंट एज पीडीएफ नोट्स, सो यू कैन लर्न एंड राइट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. Students, introduction of this poetry. Before starting the poetry, first of all, we will know about something about this poetry. Students, this poetry is written in 1895. This poetry is written in 1895 but published in 1910. After 15 years, this poetry was published in 1910. And more thing कि this poetry, it is said, ऐसा कहा भी जाता है कि this poetry is said by Rudyard Kipling to his son John. And it is said Rudyard Kipling wrote this poetry for his John. For why? To guide and train, to guide and tell about the lifestyle of a child. So we can say Rudyard Kipling wrote this poetry for his John. But we have to know many things from this poetry because you all are children and you can also learn from this story, because this poetry is full of preachings, full of morals. Every line, every sentence, every word has a moral in this poetry. So listen carefully. The theme of this poetry is self-development. Just before some time, I have just said that Rudyard Kipling wrote this poetry to develop the life of John. John उसका बेटा था, वो अपने बेटे के जीवन को वह डेवलप करने के लिए, गाइड करने के लिए वह इस पोएट्री को लिखा था. Honesty, यानी in this poetry we can see the honesty, punctuality, yani the themes are also mentioned in this poetry. We can see after the explaining this poetry. Students, this poetry is a very long. 32 lines are given in this poetry. So I have decided
to explain this poetry with the help of book. So before watching this video, first of all you have to open your English book chapter 4 if, and whenever I explain this poetry then listen carefully. So this is a long poetry, so I am teaching you, I am explaining you with the help of book. Okay, first paragraph. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. यानी रुडयार्ड किपलिंग टेल्स टू हिज सन, अपने बेटे से कहता है, इफ समवन, अगर कोई व्यक्ति डाउट्स ऑन यू, और तुम्हारे ऊपर यानी तुम पर अगर कोई डाउट करता है, आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट एन यू, और आपने कोई गलती नहीं किया है और बार बार वो आप पर ब्लेम कर रहा है, देन कीप योर हेड, या कीप योर हेड एक फ्रेजल है, फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू बी अ पीस, यानी माइंड को क्या करना, कीप पेशेंस, शांत रखना। यानी कभी समझा रहा अपने बेटे को कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे ऊपर ब्लेम करे, डाउट करे, देन यू हैव टू कीप योर माइंड पीसफुली, कि अपने दिमाग को क्या रखना है, शांत रखना है। इफ यू कैन ट्रस्ट योरसेल्फ व्हेन ऑल मेन डाउट यू बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, इफ समवन इज डाउटिंग यू देन यू हैव टू थिंक योरसेल्फ, नॉट टू से टू अदर्स। और आपके ऊपर कोई डाउट कर रहा है तो यू हैव टू थिंक, यू हैव नॉट टू इग्नोर, यानी कि इग्नोर करना, नो, यू हैव टू थिंक इन योरसेल्फ, अपने आप में आपको बिलीव करना है, अपने आप में थिंकिंग करना है कि आखिर क्यों, व्हाई आर द पीपल डाउटिंग मी, आखिर क्यों। इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज, और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग, and 8 don't look too good, not talk too right. नेक्स्ट लाइन में पोएट कर रहा है कि अगर सपोज दैट तुम कुछ कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग समथिंग एंड यू हैव नॉट टू थिंक यू हैव बीन टायर्ड, और आप कुछ कर रहे हो तो आपको थकना नहीं है, थकते थकते छोड़ना कोई काम नहीं है, एंड नेवर यू हैव टू फॉलो द लाइन, कभी आप झूठ को फॉलो नहीं करना है, और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग, if someone is hating you then you have not to hate to those persons, और कोई व्यक्ति आपसे घृणा कर रहा है तो बदले में तुमको घृणा नहीं करना है, एंड इट डोंट लुक टू गुड, नॉट टॉक टू वाइज, और अपने आप को ज्यादा स्मार्ट नहीं बनाना कि आई एम लुकिंग वेरी गुड, आई एम वेरी वाइज, यू हैव नॉट टू थिंक जस्ट लाइक दिस, यानी तुमको अपने आप को ज्यादा गुड बताना है न ज्यादा वाइज बताना। तो इन फर्स्ट पैराग्राफ में कभी क्या अपने बेटे से कर रहा है, इफ समवन इज डाउटिंग यू देन यू हैव टू थिंक इन योरसेल्फ एंड नेवर यू हैव टू फॉलो दोस पर्संस, इफ यू आस्क, इफ समवन इज गेटिंग अ लाई देन यू हैव टू थिंक कि आई हैव अ प्रॉब्लम एंड आई हैव टू इंप्रूव माई सेल्फ, आपको अपने आप को ठीक करना है, एंड डोंट यू हैव टू हेट टू द सम पर्सन, किसी दूसरे से घृणा न करना है। In second paragraph, if you can dream and not make dreams your master, if you can think, not make thoughts your aim. Every child dreams, you know, every child dreams, every person dreams to achieve something, but the person who follow the rules of his or her life, he or she may be a good person. तो यहाँ कभी बताना है कि सपने देखो, तुम सपने देखते हो देखो, बट सपने को ही सब कुछ मत बना लो कि मुझे सपना का किसी तरह कंप्लीट करना है, किसी तरह हासिल करना है। इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, सोचो, थिंकिंग करो, बट सपने को ही अपना लक्ष्य मत बनाओ, सपने के पीछे मत उतना भागो। इफ यू कैन मीट विद ट्रम्प एंड डिजास्टर एंड कीप दोज टू इम्पोस्टर जस्ट द सेम, आगे कभी अपने बेटे को समझा रहा है, बच्चे को समझा रहा है कि इफ यू आर डूइंग समथिंग, सपने देख रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो लाइफ में दो चीज मिलेगा, नहीं तो हम विनर होंगे या नहीं तो हम डिफीट होंगे, नहीं तो हम हारेंगे, नहीं तो हम क्या होंगे, जीतेंगे। तो कभी समझा रहा कि इन बोथ सिचुएशंस, इन दोनों सिचुएशंस में यू हैव टू ट्रीट द सेम, ये नहीं कि हम जीत गए तो ज्यादा खुशी होंगे और हार गए तो हम क्या होंगे, निराश हो जाएंगे, ऐसा फील नहीं करना है। दोनों सिचुएशन में हमें क्या रहना है, बैलेंस करके रखना है। नेक्स्ट, if you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap of fools,
कि अगर तुम्हारे पास कोई व्यक्ति की सच्चाई कर रहा है तो यू हैव अ पावर टू लिसन द ट्रूथ, कि कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है तो सच्चाई सुनने की क्षमता रखो। ट्विस्टेड बाय नेफ्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, और कोई मूर्ख व्यक्ति तुम्हें ट्रैप अपने जाल में फंसा रहा है तो ऐसा मत करो, मत फंसो, सच्चाई के पीछे रहो। और what the things you gave you like to broken and stoop and build them up with our tools। आगे ये भी कभी कहा है कि जब तुम कुछ करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारी हार होगी और नहीं तो जीत होगी। अगर तुम हार जाते हो, इफ यू आर टायर्ड टू डू समथिंग, कुछ भी करते करते हार जाते हो, यू हैव नॉट टू स्टॉप, रुकना नहीं है। अगेन यू हैव टू स्टार्ट एंड देन बिल्ड योर लाइफ, फिर से स्टार्ट करो और फिर से अपने जीवन को तुम क्या करो, निर्माण करो। ऐसा कभी अपने बेटे को सेकंड पैराग्राफ में समझा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टीच योरसेल्फ इन बोथ सिचुएशंस, गुड हो या बैड सिचुएशन हो, दोनों सिचुएशन में सेम ट्रीट करो। फिर आगे लिसन द ट्रूथ, सच्चाई को सुनो। और इफ यू आर टायर्ड टू डू समथिंग, कुछ करने पर तुम थक जाते हो, अगेन स्टार्ट एंड बिल्ड योर लाइफ। इन थर्ड पैराग्राफ, if you can make on heap up all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss and lose and start again at your beginnings and never play the word about your loss। आगे कवि समझा रहा है कि अगर तुम कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो तो तुम डेफिनेटली जीतोगे, रिस्क लेना पड़ेगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जैसे सिक्का उछालते हैं, टॉस करते हैं, नहीं तो क्या होता है, पट होता है, नहीं तो आगे की तरफ उबरा सिक्का चलाता है। तो कभी समझा रहा है कि इफ यू डू समथिंग देन डेफिनेटली इन योर लाइफ देयर विल बी गुड और बैड, तुम जीतोगे नहीं तो हारोगे, बट यू हैव टू टेक द रिस्क एंड हारो जीतो, फिर से स्टार्ट करो एंड नेवर प्ले द वर्ड अबाउट योर लॉस, और नेवर थिंक अबाउट योर लॉस। कभी तुम हार जाओ तो डोंट थिंक अबाउट योर लॉस, कि हार के बारे में कभी मत सोचो। इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व्स यू टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, अब बार बार प्रेशर नहीं देना है कि मैं क्यों हार गया। यू हैव नॉट टू थिंक अबाउट दैट हैज गॉन, जो चला जा चुका है, यू हैव नॉट टू थिंक, यू हैव टू मेक योर ब्रेवनेस पावर। नर्व्स मानसिक पत्नी को, हर चीज को तुमको ब्रेव बनाना है। And so hold on when there is nothing in you except the will which says to them hold on। अगर तुम हार जाते हो तो don't think as, ऐसा मत सोचो कि सब कुछ चला गया, everything has gone। No, you have will power। आपके पास क्या होना चाहिए, will power। will power मीन्स क्या होता है, शक्ति, इच्छा शक्ति। तुम्हारे पास will power होना चाहिए और इस will power को hold on यानी उसको रोके रखो and again start, then definitely you can make your life easy। Last paragraph, if you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings, nor lose the common touch, and you have to make your company a good person। कि तुम्हारा कंपनी कैसा होना चाहिए, साथी कैसा होना चाहिए, तो राजा जैसा, यानी व्यवहार करने वाला अच्छा हो, कोई आपका कोई मतलब गलत आदमी ना हो, आपका कंपनी गुड होना चाहिए। न लूज द कॉमन टच, की कुछ भी कोई करे तो आप हार न माने। इफ नाइदर फोज नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, इफ यू ऑल मेन काउंट विथ यू बट नॉट टू मच। अगर आप ऐसा करते हैं, जितने भी मोरल्स, जितने भी लाइन बताया गया है, कभी अपने बेटे को समझा रहा है, बच्चों को कह रहा है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो कोई तुम्हारा शत्रु हो या कोई कितना भी बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। यानी जितना भी मॉडल्स बताया गया, अगर तुम ऐसा करते हो, तुम्हारा कंपनी गुड कंपनी हो, अच्छा साथी हो, तो एनिमीज हो या लविंग फ्रेंड्स हो, कैन नॉट हर्ट यू, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इफ यू ऑल मेन काउंट विथ यू बट नॉट टू मच, इफ यू कैन फील द अनफॉरगिविंग मिनट विथ 60 seconds वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन। आगे कभी फिर कहता है कि यू हैव टू यूज एवरी सेकेंड ऑफ अ मिनट, हर मिनट का हर सेकंड तुम्हें, मिली सेकंड तक तुम्हें यूज करना है। यू हैव नॉट टू फॉरगेट, तुम्हें छोड़ना नहीं है। यू हैव टू यूज एवरी सेकेंड्स, एवरी मिली सेकेंड्स ऑफ लाइफ, देन यू कैन अचीव योर ड्रीम, तुम अपने सपने को पा सकते हो। लास्ट पैराग्राफ, लास्ट लाइन, सेकंड लास्ट,
yours is the earth and everything that's in it. As our hand, if you do as, do same, तो the earth is you, ये धरती तुम्हारी है, and everything that's in it, और इस धरती के अंदर जो कुछ भी है, धरती पर जो कुछ भी है वो तुम्हारा है। यानी जब हम स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे, कुछ भी करेंगे, हार जीत होगी, तो धरती तो हमारी है, नहीं तो हार होगी, नहीं तो जीत होगी, और ऐसा हम करते हैं तो वी कैन अचीव एनीथिंग। एंड लास्टली, एंड विच इज मोर, यू विल बी अ मैन माय सन। लास्टली, और ऐसा तुम करते हो अपने जीवन में तो यू वुड बी अ ह्यूमन बीइंग, तुम मानव बनोगे। यानी जन्म लेना तो ऐसा कहा था कि इज वेरी इजी, द वर्ड इज वेरी इजी, बट बी अ ह्यूमन बीइंग इज वेरी हार्ड। ऐसा कहा जाता है कि जन्म लेना तो बहुत आम बात है, सहज होती है, लेकिन मानव बनना, ह्यूमैनिटी मनुष्य के अंदर आना, ये बहुत कठिन की बात है। तो इस पोएट्री में जो कुछ भी मोरल्स बताया गया है, इफ यू वांट टू मेक योर लाइफ जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग, और तुम ह्यूमन बीइंग बनना चाहते हो, यू वांट टू बी, then definitely you have to follow the all morals and all lines, all words are given by Rudyard Kipling. So friends, इस चैप्टर का मोरल क्या है? ये पूरा आपका लाइन वर्ड ही मोरल से भरा हुआ है। So follow the every words, every lines of this poetry. I hope you all will be enjoyed to watch this video. And next, I want to say, if you all are making the fair copy, you all are making the fair question answer of this chapter, and next day we will meet again with grammar video. Okay students, bye everyone, see you.